Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Again, today I bring 20 MCQs. It is series 9. In this video, special attraction is procurement of services. In procurement of services, I will discuss consultancy services. We know that procurement of services split up into two parts. One is the consultancy service and another one non-consultancy service. But today in this video I emphasize on consultancy service. It is very important one. You can get MCQs with explanation. Please subscribe my channel Asit Government Tool Guru, and also in description of the video you can get my Telegram link. Click on it and join the group so that you can get all the videos. Definitely this video would be exciting for you. You know that in syllabus procurement of goods and services is there. Related to the procurement of goods, already I brought one video, one MCQ. So in case of procurement of services, today I will discuss about the consultancy service. It will be very useful for you for incoming principal exams. So now I am going to discuss. Question number 1. Preparation of a long list of potential consultants done on the basis of formal or informal inquiries from other ministries or departments or organizations involved in similar activities when the estimated cost of the consulting service is dash. 4 options are there: up to rupees 10 lakhs, up to rupees 20 lakhs, up to rupees 25 lakhs, up to rupees 30 lakhs. Answer is bit C, up to rupees 25 lakhs. When the concerned department or ministry want to hire the consultancy service and estimated cost is up to rupees 25 lakhs, then in this case the concerned department or ministry collect information through formal inquiry or informal inquiry from other ministries or departments or organizations involved in similar activities and prepare a list of potential consultants, and then analyze their technical and financial bids. In technical bids, detect the quality of the technical details, and in financial bid, detect the price schedule. Okay. So the consultant whose technical detail is highly qualitative one and whose evaluated cost is least one, then ultimately this consultant would be chosen. It means the contract given to this consultant. Clear? So here actually there is no invitation of bids up to rupees 25 lakhs. Only list is prepared. Okay. Potential consultant list is prepared, and out of the list, in what way just I told, in similar manner, ultimately the appropriate consultant should be chosen and the contract given to the appropriate consultant. Question number 2. When the estimated cost of the consulting service is dash, an inquiry for seeking expression of interest from consultants should be invited. It's very important one. So in this case, 4 options are there: above rupees 25 lakhs, above rupees 30 lakhs, below rupees 25 lakhs, below rupees 30 lakhs. So here answer is bit A, above rupees 25 lakhs. When the estimated cost of the consultant service is above rupees 25 lakhs, then in this case bid is invited. So preliminary stage is expression of interest. Before offering bidding documents to the shortlisted consultants, first one, the concerned department or ministry
inquiry about certain things. So expression of interest, the concerned department or ministry want to collect certain informations from the consultants. Similarly, documents related to the expression of interest uploaded in concerned department or ministry website or in central public procurement portal, GEM SPV, government e-marketplace special purpose vehicle portal. Okay, then from these portals, the interested consultants, they downloaded the documents related to the expression of interest and then they submit it. Okay, in expression of interest, basically the concerned department or ministry want to collect certain informations related to broad scope of worker service, pre-qualification criteria, eligibility, consultants' past experience, or what type of support or inputs to be provided by the ministry or department. So related to this, actually, the information in preliminary stage, the information collected by the concerned department or ministry before shortlisting of the consultants. क्लियर? सो आगे मैं पूरा डिस्कस करूंगा. तो यहाँ पर हो गया आंसर बीट ए है, तो दो पार्ट हो गया. अप टू ₹25 लाख बिडिंग इनवाइट नहीं किया जाएगा. तो इस केस में पोटेंशियल कंसल्टेंट का एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंक्वायरी फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस involved in similar type of activities. Okay, then ultimately the consultant को चूज किया जाएगा. above ₹25 लाख बीड इनवाइट किया जाएगा और इसमें जो प्रिलिमिनरी स्टेज है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है. तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पहले बिफोर द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कंसल्टेंट्स. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3. अभी मैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बताया. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शुड इंक्लूड एलिजिबिलिटी एंड द प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाय द कंसल्टेंट्स, बीट बी कंसल्टेंट्स पास्ट एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्कर सर्विस, ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्कर सर्विस, ऑल ऑफ द अबव. तो ये अभी मैं बताया कि जो कंसल्टेंसी के लिए जब बिडिंग इनवाइट किया जाता है ये प्रिलिमिनरी स्टेज है. तो इसको एक प्रकार का इंक्वायरी कहा जाता है. जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इंक्वायरी अबाउट द सर्टन फैक्ट्स. तो प्रिलिमिनरी स्टेज में ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कंसल्टेंट से? न ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्कर सर्विस, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, कंसल्टेंट्स पास्ट एक्सपीरियंस, देन inputs or supports provided by the concerned ministry or department to the consultant. तो इसमें जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये सभी इंक्लूड है. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. इन जीएफआर द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट शुड बी. फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो इंटरेस्टेड कंसल्टेंट है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनका इंफॉर्मेशन देंगे. फिर कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उनमें से कंसल्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा. क्लियर? तो जो शॉर्टलिस्ट होगा वो कितना होना चाहिए? तो शॉर्टलिस्ट में एटलीस्ट 3 होना चाहिए. द कंसल्टेंट्स शुड बी एटलीस्ट 3. इट मीन्स द कंसल्टेंट्स शुड नॉट बी लेस देन 3. तो अभी आंसर मिल गया. In GFR, the number of shortlisted consultants should be at least 3. Answer is bit B. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है. अभी चलेंगे, अभी थोड़ा हम डिटेल्स को चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद. क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर एंगेजिंग कंसल्टेंट्स व्हेन द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डज नॉट हैव रिक्विजाइट एक्सपर्टाइज. यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में रिक्विजाइट एक्सपर्टाइज नहीं है
तो यहाँ पर कंसल्टेंट चाहिए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए बिफोर चूजिंग द कंसल्टेंट। तो ये एब्सोल्युटली राइट है, अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास एक्सपर्टाइज कंसल्टेंट नहीं है, तो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। ओके, उसके बाद फिर जो प्रोसीजर होगा हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया, तो फिर चूज किया जाएगा अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, आंसर इज बीट एस, राइट। चलो, कंसल्टिंग सर्विसेज के ऊपर हम डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बोल चुका हूं कि एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, पॉलिसी कंसल्टेंट्स, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स, advisory and project related consulting services include project management, engineering services, finance, accounting and tax services, feasibility studies and training and development etc. इस तरीके का कंसल्टिंग सर्विस चाहिए। तो इसको पूरा याद करना है कि कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है। तो रिलेटेड टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पॉलिसी कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज कंसल्टेंट, ओके, अकाउंटिंग कंसल्टेंट, कंसल्टेंट रिलेटेड टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंट रिलेटेड टू द फिजिबिलिटी स्टडीज, तो ये सब चाहिए, राइट। तो ये सब इंक्लूड होता है। द फॉलोइंग सर्विसेज कम्स अंडर कंसल्टिंग सर्विसेज, इसको आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। The ministries or departments may hire external professionals, consultancy firms or consultants for a specific job. यदि डोमेस्टिक कंट्री में अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट नहीं है तो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का राइट है कि वो कंसल्टेंट हायर कर सकता है अब्रोड से। वही है स्टेटमेंट, ओके, टू कंप्लीट द स्पेसिफिक जॉब, राइट। Next one, approval of the competent authority should be obtained before engaging consultants. Concerned ministry और डिपार्टमेंट के पास एक्सपर्टाइज कंसल्टेंट नहीं है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के बाद फिर प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर्स होगा कि कैसे अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट को चूज किया जाएगा, मैं आगे में डिस्कस करूंगा। The ministries or departments should prepare in simple and concise language the requirement, objectives and the scope of assignment. तो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सिंपल और कंसाइज लैंग्वेज में प्रिपेयर करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्कोप ऑफ असाइनमेंट है, वो निर्धारण करता है। तो अभी चलेंगे कॉस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अभी मैं डिस्कस किया था। अप टू ₹25 लाख बिड इनवाइट नहीं किया जाएगा। इसमें थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंक्वायरीज फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स, उनसे इंक्वायरी करके एक लिस्ट प्रिपेयर जाएगा, पोटेंशियल कंसल्टेंट का एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट को चूज किया जाएगा। मगर यहां पर बीड इनवाइट नहीं किया जाएगा अप टू ₹25 लाख, ओनली लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा पोटेंशियल कंसल्टेंट्स का थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंक्वायरीज फ्रॉम अदर्स, दोज हु इन्वॉल्व इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट है मोर देन ₹25 लाख। यदि एस्टिमेटेड कॉस्ट मोर देन ₹25 लाख होगा तब बिड इनवाइट किया जाएगा। उसका प्रोसेस अब अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसीजर्स है, क्या पैरामीटर्स है, किस तरीके का डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा, कैसे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कंसल्टेंट्स को, ये सब डिस्कस करेंगे। तो मोर देन ₹25 लाख, an inquiry for seeking expression of interest from consultants should be published on Central Public Procurement Portal JMSPV and website of concerned organization। जो मोर देन ₹25 लाख जब कॉस्ट होगा तो हम बीड इनवाइट करेंगे। तो इसमें जो प्रिलिमिनरी स्टेज है एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो इंक्वायरी करेगा
वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा कंसल्टेंट से। तो जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, कहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा? कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उसका वेबसाइट में अपलोड करेगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अपलोड करेगा, JMSPB में अपलोड करेगा। ओके, तो जो इंटरेस्टेड, जो कंसल्टेंट्स इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे और इंफॉर्मेशन फिर उसको फिलअप करके प्रोवाइड करेंगे। ये प्रीलिमिनरी स्टेज है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को? द ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क और सर्विस, इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इनपुट्स और सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, कंसल्टेंट्स पास्ट एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्क और सर्विस, उसका पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। कंसल्टेंट्स भी कमेंट कर सकता है, कंसल्टेंट्स कमेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द वर्क और सर्विस प्रोजेक्टेड इन द इंक्वायरी। तो ये सब चीज आएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है। तो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से वो पोटेंशियल कंसल्टेंट्स का लिस्ट प्रिपेयर करता है, बिडिंग इनवाइट करता है, प्रिलिमिनरी स्टेज में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये फर्स्ट स्टेज है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान रूपक देखना है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स because all these actually things actually included in the preliminary inquiry and it is expression of interest. चलो, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कंसल्टेंट्स, अभी रेस्पॉन्स तो रिसीव हो गया, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए अभी डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को मिल गया। आफ्टर रेस्पॉन्सेस रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टीज, कंसल्टेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। रेस्पॉन्सेस मिलने के बाद फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कंसल्टेंट्स का। अभी सभी कंसल्टेंट से हमको रिस्पॉन्स मिल गया, अभी हम कंसल्टेंट्स का शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसमें जो शॉर्टलिस्ट होगा उसमें एटलीस्ट 3 कंसल्टेंट्स होना चाहिए। ओके, द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स शुड नॉट बी लेस देन 3, शुड नॉट बी लेस देन 3 और एटलीस्ट 3 कंसल्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट में लेना है, एटलीस्ट 3 और शुड नॉट बी लेस देन 3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एटलीस्ट 3 कंसल्टेंट्स को लेना है शॉर्टलिस्ट में। फिर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन से टॉर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन से, कोई कंसल्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में वो साइन करेगा। तो इसमें जो टर्म है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या आता है? प्रेसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट। फर्स्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड में किस तरीके का टास्क को कंप्लीट करना है, शेड्यूल रहेगा। थर्ड वन, कंप्लीशन ऑफ टास्क का एक शेड्यूल रहेगा, कौन सा टाइम में ओके डिफरेंट टास्क को कंप्लीट किया जाएगा। सपोर्ट और इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट द कंसल्टेंसी, तो किस तरीके का सपोर्ट और किस तरीके का इनपुट्स मिलेगा कंसल्टेंट को फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से, वो भी टर्म में मेंशन होगा। द फाइनल आउटपुट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द कंसल्टेंट, और क्या किस तरीके का फाइनल आउटपुट चाहिए कंसल्टेंट से। तो ये सब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, ये एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई भी चीज जब गवर्नमेंट एंटिटी के साथ साइन होता है तब टर्म्स एंड कंडीशंस का साइन होता है, ये टर्म वही है। क्लियर? तो ये प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक्चुअली ये सब चीज है, ऑब्जेक्टिव्स आएगा, आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट, शेड्यूल, what type of supports or inputs to be provided by the ministry or department to facilitate the consultancy, और किस तरीके का फाइनल आउटपुट चाहिए कंसल्टेंट से। तो ये सब चीज टर्म्स एंड कंडीशंस में आ गया, इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फिर क्या जाएगा, इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शॉर्टलिस्ट हो गया, जो पोटेंशियल कंसल्टेंट्स का शॉर्टलिस्ट हो गया। तो शॉर्टलिस्ट में हमको क्या पता चला कि एटलीस्ट 3
कंसल्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस। जितना कंसल्टेंट्स इंटरेस्टेड थे उनका रिस्पॉन्स वो दे दिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से, फिर हम अभी शॉर्टलिस्ट कर दिए। जो शॉर्टलिस्ट होगा वो एटलीस्ट 3 होना चाहिए और ज़्यादा मिनिमम 3 होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, होने के बाद जो RFP है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, वो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑफर्स फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स, राइट। ये जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर ऑब्टेनिंग ऑफर्स फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स, सो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स को ये डॉक्यूमेंट उनको दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके हम कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को देंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है इट इज डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑफर्स फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स। तो इसमें क्या क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? लेटर ऑफ इन्वाइटेशन होता है, इंफॉर्मेशन टू कंसल्टेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीज्योर फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल को कैसे सबमिट करना है वो पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी हम डिस्कस किया, टर्म के ऊपर कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस को वो साइन करेंगे, वो उसको फुलफिल करना है। एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एक्चुअली एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, वहां पर वो क्लियर नहीं है तो फिर देना पड़ेगा एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन केस द सेम हैज नॉट बीन ascertained थ्रू इंक्वायरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। लिस्ट ऑफ की पोजीशन हुज CV करिकुलम विटा एंड एक्सपीरियंस वुड बी इवैल्यूएटेड, उनका एक्सपीरियंस और उनका पूरा डाटा वो देंगे। ओके, जो करिकुलम विटाए होता है, जैसे हम इंफॉर्मेशन देते हैं कोई जॉब में, कोई हम डालते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। बीड एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी होगा, दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट में रहेगा किस तरीके से बीड एवेल्युएशन होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल, जो टेक्निकल बीड्स और फाइनेंशियल बीड्स जो कंसल्टेंट सबमिट करेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट से उनको दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स प्रपोज्ड, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, प्रोसीजर प्रपोज टू बी फॉलोड फॉर मिड टर्म रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड रिव्यू ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ऑब्टेन बीड्स बेसिकली ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स, तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये डॉक्यूमेंट्स है फॉर ऑब्टेनिंग ऑफर्स फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिया जाएगा और वो पूरा डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके उनको सबमिट करना है। और उसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, और उसमें जो टेक्निकल बीड्स और फाइनेंशियल बीड्स। ओके, इसके ऊपर हम देखेंगे रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ प्रपोजल्स। ये 2 बीड सिस्टम जैसा होता है, 2 बीड सिस्टम विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स सील्ड सेपरेटली। तो ये 2 बीड सिस्टम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ये जो कंसल्टेंसी सर्विस में किस तरीके का मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, ये 2 बीड सिस्टम। जो टेक्निकल बीड्स है, जो टेक्निकल डिटेल्स है, जो कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो एक एनवलप में रहेगा। और जो प्राइस शेड्यूल है, फाइनेंशियल बीड्स बेसिकली द कॉस्ट, उनका प्राइस शेड्यूल रहेगा फाइनेंशियल बीड में, वो भी सेपरेट एनवलप में रहेगा। फिर क्या कहा जाए, द बीडर शुड पुट द अबव 2 सील्ड एनवलप्स इन ए बिगर एनवलप डेली सील्ड एंड सबमिट द सेम टू द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बाय द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम एंड द स्पेसिफाइड प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेपरेटली डिफरेंट एनवलप्स में टेक्निकल बीड्स, फाइनेंशियल बीड्स रहेगा, और एक बड़ा एनवलप में उसको डाला जाएगा और उसको सबमिट किया जाएगा। फास्ट द टेक्निकल प्रपोजल शुड बी ओपन फास्ट टेक्निकल बीड्स को ओपन किया जाएगा, उसका क्वालिटी को एनालाइज किया जाएगा। टेक्निकल प्रपोजल शुड बी ओपन फास्ट एट द स्पेसिफाइड डेट टाइम एंड प्लेस। तो पहले स्पेसिफाइड डेट दिया गया है, किसी डेट के अंदर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, डेट टाइम एंड प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट में एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं होगा, और वैसे ही टेक्निकल प्रपोजल्स जो ओपन होगा किस डेट में होगा, कौन सा टाइम में होगा, कौन सा प्लेस में होगा, वो भी क्लियरली मेंशन होगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट में वो क्लियरली मेंशन है। प्रोसीज्योर्स, कैसे क्या क्या प्रोसीज्योर्स है सबमिशन करने के लिए, कैसे क्या एवेल्युएशन क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन किया जाए, पूरा डिटेल्स है। तो फर्स्ट टेक्निकल प्रपोजल्स को ओपन किया जाएगा, ठीक है। एंड प्रायर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड डेट टाइम एंड प्लेस। यहाँ पर लेट बीड्स एक्चुअली
तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो डॉक्यूमेंट्स शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट सबमिट करेंगे उनको टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है और प्लेस दिया गया है। वो लेट में सबमिट करेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो लेट बिड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वही लेट बिड्स आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम शुड नॉट बी कंसिडर्ड। लेट बिड्स को रिसीव नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर चलो अभी एवेल्युएशन को चलेंगे। एवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स। तो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक कमिटी बनाएगा। वो कमिटी है कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी, CEC, कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी, constituted by the ministry or department, right? So CEC shall record in detail the reasons for acceptance or rejection of the technical proposals analyzed and evaluated by it. तो जो कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी कंस्टिट्यूट करेगा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उसका राइट है वो टेक्निकल डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट भी करेगा। तो CEC shall record in detail the reasons for acceptance, वो रीजन देना है कि क्यों एक्सेप्ट किया गया और क्यों उसको टेक्निकल बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो भी रीजन भी रहेगा। एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल बिड्स ऑफ द टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी टेक्निकल बिड्स को चेक किया गया, एनालाइज किया गया। जो टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स है, जिसको मिनिमम स्कोर मिला, टेक्निकल बिड्स को जब एनालाइज किया गया वहां पर एक मिनिमम स्कोर दिया जाता है। जिनको मिनिमम स्कोर मिला वो टेक्निकली क्वालिफाइड हो गए, उनका ही फाइनेंशियल बिड ओपन होगा। ये तो 2 बिड सिस्टम का रूल है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में हम जान चुके हैं। तो एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल बिड्स ऑफ द टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल ओपन द फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दोज बिडर्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड टेक्निकली क्वालिफाइड बाय द CEC। जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, जिसका टेक्निकल डिटेल्स क्वालिटेटिव है, उनको चुना गया, उनको चूज किया गया, उनको मिनिमम स्कोर दिया गया, राइट? तो उनका ही फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा, उनका प्राइस शेड्यूल को चेक किया जाएगा। उसको कॉस्ट कहा जाता है, क्वालिटी एंड कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, कॉस्ट का बात आएगा तो फाइनेंशियल बिड्स। आफ्टर एनालिसिस और एवेल्युएशन एंड रैंकिंग एंड सिलेक्टिंग द सक्सेसफुल बिडर फॉर प्लेसमेंट ऑफ द कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट, उसको एनालाइज किया जाएगा, उनको रैंकिंग किया जाएगा, फिर सक्सेसफुल बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, राइट? चलो मेथड्स क्या है? तो 3 मेथड्स है। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन और एवेल्युएशन, क्या क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शंस, QCBS, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शंस। इसमें क्या आता है ना, फर्स्ट द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल प्रपोजल्स इज स्कोर्ड एज पर द क्राइटेरिया इन द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, दोज आर गेटिंग एटलीस्ट मिनिमम स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग स्कोर आर कंसिडर फर्दर। तो इसमें जो टेक्निकल प्रपोजल्स का क्वालिटी को एनालाइज किया जाएगा, इसीलिए एक कमिटी बनाया गया। वो कमिटी है कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी, CEC। तो यहां पर स्कोरिंग होगा, जो मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोरिंग होगा तो उनको फर्दर कंसिडर किया जाएगा और उनका फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा। सबका फाइनेंशियल बिड्स ओपन नहीं होगा, जिनको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मिलेगा उनका ही फाइनेंशियल बिड्स ओपन होगा, उनका प्राइस शेड्यूल को एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, देन एनालाइज द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स। जो टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स है उनका ही फाइनेंशियल प्रपोजल्स को ओपन किया जाएगा। A final combined score is arrived at by giving predefined relative weightage for the score of quality of the technical proposal and the score of financial proposal। यहां पर एक स्कोरिंग होता है, जैसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है टेक्निकल डिटेल्स के लिए, क्वालिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, और एक है कॉस्ट जो है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बिड्स। सपोज 70-30, तो यहां पर आउट ऑफ 100 मार्क, सपोज 100 मार्क, 70% weightage given to the quality of technical details, 30% weightage given to the cost, it is related to the financial proposals, right? 70-30। मगर यहां पर जो आगे मैं बताऊंगा, देखिए, द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्पेसिफाई द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर फॉर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल प्रपोजल एंड ऑल्सो द रिलेटिव वेटेजेस टू बी गिवन टू द क्वालिटी एंड कॉस्ट। ऐसे 70-30, 60-40। 60-40 मीन्स
Suppose out of 100 mark, 60 marks given, 60% weightage given related to the quality of technical details and other 40% वो जाएगा related to the financial proposals. ऐसे होता है, मगर इसमें the proposal with the highest जो combined score होगा, ओके weightage में जैसे मैं बताया वो एक स्कोर दिया जाएगा for quality of technical details and related to the cost of basically evaluation cost. एवेल्युएशन कॉस्ट मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रपोजल्स, ठीक है। ऐसा रेशियो होता है 70-30, 60-40, 50-50 ऐसे होता है। तो कंबाइंड स्कोर जिसको ज्यादा मिलेगा उसको ही फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो यहां पर ये जो वेटेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द वेटेज ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर्स दैट इज टू से नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स इन नो केस शुड एक्सीड 80%। ये जो टेक्निकल डिटेल्स, जो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स के लिए जो वेटेज होगा वो 80% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर सपोज 80% हो गया वेटेज, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए कितना रहेगा? 20% रहेगा। सपोज आउट ऑफ 100 मार्क 80 मार्क दे दिया गया टेक्निकल डिटेल्स के लिए, तो कॉस्ट के लिए बेसिकली फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए कितना मार्क रहेगा? 20 मार्क। और यहाँ पर जो टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए जो वेटेज रहेगा वो मैक्सिमम 80% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये याद रखना है। और अदरवाइज 70-30, 60-40 ये हो सकता है, मगर मैक्सिमम वेटेज जो रहेगा टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए वो 80%। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट हो गया, ओके, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। जो सेकेंड है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम। यहां पर जो है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम में यहां पर दिया है अप्रोप्रिएट फॉर असाइनमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड और रूटीन नेचर सच एज ऑडिट्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क्स वेयर वेल एस्टेब्लिश्ड मेथोडोलॉजीज प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट। जहां पर नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क्स, इसको याद रखना है, जहां पर नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क्स है ये मेथड को फॉलो किया जाएगा, सेकेंड मेथड को, लीस्ट कॉस्ट सिस्टम को। यहां पर कोई वेटेज नहीं रहेगा, जैसे टेक्निकल डिटेल्स के लिए और यहां पर कॉस्ट के लिए, जैसे फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए ऐसा कोई वेटेज नहीं रहेगा, ठीक है। ये नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए बेसिकली इट इज फ्रूटफुल फॉर नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क दिस मेथड। द रेस्पॉन्सिव टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट। तो टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट शैल बी सिलेक्टेड। यहां पर कोई वेटेज नहीं रहेगा, वहां पर जैसे वेटेज था जैसे मैक्सिमम टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए 80% रहेगा और 20% रहेगा फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए, कि मैक्सिमम टेक्निकल पैरामीटर्स कितना रहेगा वेटेज? 80%। यहां पर कोई वेटेज नहीं रहेगा, यहां पर सिंपली टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल, ओके, वो टेक्निकली क्वालिफाइड है द कंसल्टेंट एंड लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट, बेसिकली लीस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट, जो एवेल्युएटेड कॉस्ट लिस्ट रहेगा उसको फाइनली सिलेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्पॉन्सिव टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट शैल बी सिलेक्टेड, राइट। ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड सिंगल सोर्स सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंसी बाय नॉमिनेशन। सिंगल सोर्स, ओके, नॉमिनेशन से एक सिंगल कंसल्टेंट को चूज कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? द सिलेक्शन बाय डायरेक्ट नेगोशिएशन और नॉमिनेशन ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगल टेंडर मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। सिंगल टेंडर जैसा होता है, यहां पर एक ही पर्टिकुलर कंसल्टेंट को दे दिया जाएगा। टास्क दैट रिप्रेजेंट ए नेचुरल, कुछ क्या क्या कंडीशन से देख लीजिए। टास्क दैट रिप्रेजेंट ए नेचुरल कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वर्क कैरिड आउट ऑफ द फर्म। सपोज प्रीवियसली एक कंसल्टेंट वो काम कर रहा है, उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि पहले से वो काम कर रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन में, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस अराइजिंग आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट इज ऑफ ऑटमोस्ट इंपोर्टेंस। यहां पर याद रखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में तो एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट को नॉमिनेट इमीडिएटली कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको जो काम चाहिए वो एक्सपीडिएंटली, हॉस्पिटली काम चाहिए, जल्दी चाहिए। तो यहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में वहां पर दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट को दे दिया जाएगा, नॉमिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिटेक्ट किया है कि ओनली वन कंसल्टेंट है जो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वहां पर नॉमिनेट हो गया, ओनली वन कंसल्टेंट हैज रिक्विजिट एक्सपर्टाइज। सिंगल सोर्स सिलेक्शन इन द कंटेस्ट ऑफ द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। सपोज ओवरऑल इंटरेस्ट है, जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है कि यही जो कंसल्टेंट है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा,
मगर वो वहाँ पर जस्टिफिकेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर व्हाट जस्टिफिकेशन एक्चुअली द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर कंसल्टेंट, वो वहाँ पर जस्टिफिकेशन रहेगा। सिंगल सोर्स सिलेक्शन इन द कंटेस्ट ऑफ द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद एडिक्वेट जस्टिफिकेशन। Justification should be recorded in file and approval of the competent authority obtained before resorting to such single source selection. Last one, it shall ensure fairness and equity. Prices are reasonable and consistent with market rates of task of a similar nature, and the required consultancy services are not split into smaller sized procurements. तो यहाँ पर जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कंसल्टेंसी सर्विस दिया जाएगा उसको स्प्लिट नहीं किया जाएगा। ओके, एंड द रिक्वायर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज आर नॉट स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज प्रोक्योरमेंट्स, इसको भी आपको याद रखना है। स्मॉलर साइज प्रोक्योरमेंट्स में नहीं, उसको स्प्लिट नहीं किया जाएगा। ये है, तो जब पर्टिकुलर कंसल्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जाएगा। Okay, the concerned department or ministry properly monitoring the tax, okay, to be carried out by the particular consultant, okay, who got the contract, जो वो टाइमली वो टास्क को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, वो उसका जो शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है, उसके हिसाब से कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, उसका रिव्यू होगा। तो वही इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपरली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसल्टेंट्स सो दैट the output of the consultancy is in line with the ministry or department's objectives। तो जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी लाइन में उसको काम करना है, टाइमली कंप्लीट करना है टास्क, डिफरेंट टास्क को, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो पीरियोडिकली उसका रिव्यू करेगा, प्रॉपरली मॉनिटरिंग करेगा कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। पब्लिक कंपटीशन फॉर डिजाइन ऑफ सिंबल्स और लोगोज, ऐसा कुछ सिंबल्स और लोगोज चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को। यहां पर पब्लिक कंपटीशन होगा तो उसका फॉर्मेट इट मीन्स अपलोड किया जाएगा, किस फॉर्मेट से उसका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसीज्योर से, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब अपलोड होगा कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का वेबसाइट में, CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में, JMSPB में। तो फिर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इफ द सिलेक्शन हैज बीन बाय ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स, ऐसा कुछ सिलेक्शन होगा ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स नॉमिनेटेड फॉर द पर्पस, द कंपोजिशन ऑफ द ज्यूरी आल्सो मे आल्सो बी नोटिफाइड। क्या क्या कंपोजिशन, ज्यूरी का कंपोजिशन क्या रहेगा, जो जज रहेंगे उनका कंपोजिशन क्या होगा। तो ये पूरा पब्लिक कंपटीशन जैसा होगा। ऐसे एक्चुअली चूज नहीं कर देगा बेसिकली कोई डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, वो उसको एक डिजाइन चाहिए सिंबल्स का कि लोगोस का, वो पब्लिक कंपटीशन होगा, वो भी बिडिंग की तरह वो भी इन्वाइट किया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी क्वेश्चंस को आएंगे। ये था पूरा कंसल्टेंसी सर्विस के ऊपर पूरा बताया प्रोसीड्यूर्स, हाउ टू सिलेक्ट द अल्टीमेटली हाउ टू सिलेक्ट द पोटेंशियल कंसल्टेंट, अल्टीमेटली हाउ टू प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बताया। 3 मेथड्स बताया, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड थर्ड वन बताया बाय नॉमिनेशन, सिंगल सोर्स सिलेक्शन। अच्छा अभी चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कम अंडर द परव्यू ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज। अभी मैं बताया था मैनेजमेंट, पॉलिसी, एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टेंसी में ये सब आता है, टैक्स की ऑडिटिंग की अकाउंटिंग, ठीक है, और इंजीनियरिंग ये सब आता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, पहले से मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है, बेसिकली मैनेजमेंट, पॉलिसी, कम्युनिकेशन एंड एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विसेज में ये सब आ जाएगा बेसिकली। उसमें इंजीनियरिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स ये सब आएगा। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज कंसल्टेंट, ओके, अकाउंटिंग कंसल्टेंट, ये सब आएगा। अच्छा ऑल ऑफ द अबव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बी डी। चलो टर के ऊपर आएंगे, व्हाट आर द कंटेंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अभी मैं बताया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, इसमें बेसिकली प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, और आउटलाइन द टास्क टू बी कैरिड आउट, क्या क्या टास्क कैरिड आउट करना होगा, शेड्यूल रहेगा, और व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट और इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट द कंसल्टेंसी, और क्या फाइनल आउटपुट एक्सपेक्ट किया जाएगा रिक्वायर्ड कंसल्टेंट से।
तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस इसको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये रहेगा, आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट, शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। अब देख लीजिए, पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये टर्म्स एंड कंडीशंस। ये भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट में रहेगा टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में डॉक्यूमेंट्स में बोला था लेटर ऑफ इन्वाइटेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स को सब डाउनलोड करेंगे, ओके, फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, और CPPP और JMSP भी उसमें डाउनलोड करके वो सबमिट करेंगे। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स टू सीक देयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल्स, ओके, उनका टेक्निकल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, जो टेक्निकल प्रपोजल्स है, फाइनेंशियल प्रपोजल्स वो सबमिट करेंगे। ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में आता है। ये एक डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ऑफर्स फ्रॉम द कंसल्टेंट्स फॉर द रिक्वायर्ड सर्विस, ये मैं बोल चुका हूँ, देख लीजिए। ओके, इसमें क्या क्या आता है, लेटर ऑफ इन्वाइटेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन टू कंसल्टेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीज्योर फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल, ये जो प्रपोजल को सबमिट करना है, टेक्निकल प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल कैसे सबमिट करना है उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। टर्म्स ऑफ रिफरेंस, एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यदि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो प्रिलिमिनरी स्टेज था वहाँ पर उनका एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, फिर यहाँ पर उनको देना पड़ेगा। उनका करिकुलम विटाe एंड एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। और बीड कैसे एवेलुएट होगा, जो जैसे मैं मेथड्स बताया, 3 मेथड्स, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, लिस्ट कॉस्ट मेथड और बाय नॉमिनेशन, ये सब पूरा कैसे बीड को एवेलुएट किया जाएगा और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये भी रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल, उनका टेक्निकल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स देने के लिए उसका फॉर्मेट भी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स रहेगा, और उसमें भी रहेगा कि क्या प्रोसीजर होगा जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जाएगा, उनका टास्क को रिव्यू किया जाएगा, ये पूरा डिटेल्स उनको दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके फिर सबमिट करेंगे, नहीं क्या। तो आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स में क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये बीट डी है। प्रपोज लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स ये नहीं है, और सब ये लेटर ऑफ इन्वाइटेशन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, बीड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है। तो आंसर इज बीट डी, प्रपोज लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स ये इंक्लूड नहीं है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हु विल एवेल्युएट द टेक्निकल बिड्स। अभी मैं बताया था टेक्निकल बिड्स को एवेल्युएट करने के लिए एक कमिटी बनेगा, कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी, CEC, नहीं कि आंसर मिल गया। हु विल एवेल्युएट द टेक्निकल बिड्स, जो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी, वो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स को एनालाइज करेगा और उनको एक स्कोर दिया जाएगा। जो मिनिमम स्कोर करेगा वो टेक्निकली मिनिमम स्कोर जिसको मिलेगा उसका फाइनेंशियल बिड्स को एनालाइज किया जाएगा, नहीं तो उनका अदरवाइज जिनको मिनिमम स्कोर नहीं मिला उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनका फाइनेंशियल बिड्स को ओपन नहीं किया जाएगा। तो आंसर हो गया बीटे, कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे, व्हाट डज QCBS स्टैंड्स फॉर। जो 3 मेथड्स में बताया, हाउ टू एवेल्युएट द कंसल्टेंट्स, हाउ टू सिलेक्ट द कंसल्टेंट्स, डिफरेंट मेथड्स टू सिलेक्ट द कंसल्टेंट में बताया था। ये QCBS क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, क्वालिटी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स का क्वालिटी देखेंगे और कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल प्रपोजल्स का देखा जाएगा। जिसका लीस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट होगा, यहाँ पर क्वालिटी रहेगा टेक्निकल डिटेल्स और वहाँ पर लीस्ट कॉस्ट रहेगा एवेल्युएशन कॉस्ट। अल्टीमेटली उसी कंसल्टेंट को चूज किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो ये हो गया, तो क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, तो आंसर है बीट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इन QCBS व्हाट इज द हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर्स। जो क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में मैं बताया था वेटेज रहेगा, जो जैसे 100 मार्क्स में बताया था, तो मैक्सिमम वेटेज टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए 80% रहेगा। सपोज 100 मार्क रहेगा, मैक्सिमम 80 रहेगा टेक्निकल डिटेल्स के लिए, और फाइनेंशियल प्रपोजल जो कॉस्ट हम बोलते हैं उसके लिए 20 मार्क्स रहेगा। तो मैक्सिमम 80 और 70-30, 60-40 ये भी हो सकता है। मगर जो QCBS मेथड है उसमें मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए वो 80% रहेगा मैक्सिमम। यदि ये 80% हुआ तो फाइनेंशियल प्रपोजल्स 20% रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड स्कोर दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर बीट डी है, 80%।
चलो क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच बीड इज ओपनड फास्ट बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन टू बीड सिस्टम इन केस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम जानते हैं कि टू बीड सिस्टम में फास्ट और टेक्निकल बीड को ओपन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो सबमिट किया जाता है टेक्निकल डिटेल्स एक एनवलप में रहता है, फाइनेंशियल बीड्स एक एनवलप में रहता है, और एक बिग एनवलप में दोनों एनवलप को रखा जाता है और सबमिट किया जाता है। तो फास्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा और जो कंसल्टेंसी एवेल्युएशन कमिटी है सीईसी उसको एवेल्युएट करेगा और उनको स्कोर दिया जाएगा। जैसे वेटेज में बताया था, सपोज वेटेज 70-30 है, 70:30, 70% है 70% टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए, तो 70 मार्क रहेगा टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए और 30 मार्क रहेगा फाइनेंशियल प्रपोजल्स कॉस्ट के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम टेक्निकल पैरामीटर्स कितना वेटेज रहेगा 80%। तो यहां पर हो गया फर्स्ट ओपन होगा टेक्निकल बीड, ठीक है। तो ये आंसर बीट बी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। इन केस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज बीड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट शुड बी कंसीडर्ड। नहीं, हम एक लेट बीड के ऊपर पढ़े थे कि एक स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम दिया जाता है, जो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स है उनको इनवाइट किया जाता है कि आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट करो, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स। तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा, डेट, टाइम एंड प्लेस दिया जाएगा, और वो डेट और टाइम के बाद सबमिट होता है तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। मगर यहां पर दिया है इन केस ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज बीड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट शुड बी कंसीडर्ड। नो, रिसीव नहीं किया जाएगा। तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर होगा नो, बीट बी आंसर होगा, क्योंकि रिसीव नहीं किया जाएगा, लेट बीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन और इवैल्यूएशन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल्स। अभी मैं डिस्कस किया था क्या क्या मेथड्स है, 3 मेथड्स है, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, लीस्ट कॉस्ट सिस्टम, कंसल्टेंसी बाय नॉमिनेशन। ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज बीट डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। इसको मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15, इन लीस्ट कॉस्ट सिस्टम फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन टू द कंसल्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ। ये जो सेकंड मेथड है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम में क्या है, नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क। जहां पर नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, जिस कंसल्टेंट से हम सर्विस लेते हैं वो नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, वहां पर लीस्ट कॉस्ट सिस्टम जाएगा। वहां पर कोई कंबाइंड स्कोर नहीं होगा, जैसे टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए और टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए कि फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए, वहां पर कोई कंबाइंड मार्क नहीं लिया जाएगा। बेसिकली टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए द पर्टिकुलर कंसल्टेंट वो क्वालिफाई करेगा, और जिस कंसल्टेंट का लिस्ट एवेल्युएशन कॉस्ट होगा, लिस्ट एवेल्युएशन कॉस्ट होगा, उसको चूज कर दिया जाएगा। तो यहां पर है, आप आंसर देख लीजिए, द प्रपोजल विद द हाईएस्ट वेटेड कंबाइंड स्कोर, यहां पर तो कंबाइंड स्कोर नहीं है, प्रपोजल विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर फॉर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल प्रपोजल, डी बाय नॉमिनेशन। तो यहां पर यह है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन टू द कंसल्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ये है प्रपोजल विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट। आंसर बीट बी होगा, प्रपोजल विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट लिस्ट कॉस्ट सिस्टम में। तो बेसिकली जो टेक्निकली मिनिमम स्कोर मिलेगा और जिसका एवेल्युएटेड कॉस्ट लो होगा ले लिया जाएगा। और जो क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन था, वहां पर एक कंबाइंड स्कोर दिया जाता है टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए और फाइनेंशियल प्रपोजल्स के लिए, जिसका कंबाइंड स्कोर ज़्यादा रहेगा उसको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए मिनिमम स्कोर दे दिया जाएगा, और उसके बाद जिसका लिस्ट एवेल्युएटेड कॉस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। आंसर इज बीट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। विच इज नॉट द रीजन फॉर सिंगल सोर्सेज सिलेक्शन और कंसल्टेंट्स बाय नॉमिनेशन। अभी थर्ड मेथड में बताया था कब पर्टिकुलर कंसल्टेंट को नॉमिनेट कर दिया जाता है, और ये सिंगल सोर्स सिलेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ में बताया था कि जहाँ पर सर्विस एक कंसल्टेंट वो सर्विस दे रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ये भी ठीक है फर्स्ट वन। बीट बी में इमरजेंसी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विदाउट जस्टिफिकेशन, नो। कभी कभी क्या है, ये रॉन्ग है, ये वही पूछा है विच इज नॉट द रीजन, ये रीजन रॉन्ग है, क्योंकि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्या है, कभी कभी उनका इंटरेस्ट होता है कि पर्टिकुलर कंसल्टेंट को वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वहाँ पर वो जस्टिफिकेशन देंगे, मैंने विथ जस्टिफिकेशन दे चूज द पर्टिकुलर कंसल्टेंट। ओके, तो यहाँ पर विदाउट, नो, विदाउट ये रॉन्ग है। और ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ वन कंसल्टेंट हैज रिक्विजिट एक्सपर्टाइज, और ये जो मेथड है बाय नॉमिनेशन और सिंगल सोर्स, सपोज एक ही कंसल्टेंट वो एक्सपर्टाइज है तो उसको तो चूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है बीट सी है, इंटरेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विदाउट जस्टिफिकेशन,
कभी कभी क्या है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट उनका इंटरेस्ट से वो एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट को चूज करते हैं, मगर उसके लिए जस्टिफिकेशन भी देते हैं, जस्टिफिकेशन रिकॉर्डेड होगा, राइट। तो आंसर सी जो है ये, इट इज नॉट द रीजन फॉर सिंगल सोर्स सिलेक्शन और कंसल्टेंट्स बाय नॉमिनेशन। 17 को चलेंगे, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट चूज द डिजाइन और लोगोज इंडिपेंडेंटली विदाउट पब्लिक कंपटीशन। नहीं, अभी हम डिस्कस किया, जब कोई कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को लोगोज चाहिए कि डिजाइन चाहिए तो वो पब्लिक कंपटीशन में जाएंगे, इंडिपेंडेंटली वो चूज नहीं करेंगे, वो पब्लिक कंपटीशन में जाएंगे, बीड इनवाइट करेंगे, उनका प्रोसीजर होगा, और कभी कभी ज्यूरी मेंबर्स को वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और पूरा कंपोजिशन भी देते हैं, पूरा नोटिफिकेशन में रहेगा। तो यहाँ पर जो दिया है, द मिनिस्टर डिपार्टमेंट चूज द डिजाइन और लोगोज इंडिपेंडेंटली विदाउट पब्लिक कंपटीशन, ये गलत है। तो आंसर बीट बी हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय डिपार्टमेंट इन द सीक्वेंस फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू द कंसल्टेंट। क्या क्या प्रोसीजर है हम जानते हैं, जब इन्वाइट होगा अबव ₹25 लाख, जब एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, तब फर्स्ट वन प्रिलिमिनरी में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट रहेगा। जो जो इंटरेस्टेड कंसल्टेंट्स है उनका वो इट मीन्स वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, एक इंक्वायरी ये होता है, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को, फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद फिर कंसल्टेंट्स का शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसमें मैं बताया एटलीस्ट 3 होना चाहिए। जो शॉर्टलिस्टेड होने के बाद उनको एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, डॉक्यूमेंट्स उनको इन्वाइट किया जाएगा, जैसे बिडिंग में होता है, ओके, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वही बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में आ जाता है। फिर फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, फिर फाइनेंशियल बिड्स को, जो टेक्निकली जिनको मिनिमम स्कोर मिलेगा उनका फाइनेंशियल बिड्स ओपन होगा। तो ये चारों जो ऑर्डर है, फर्स्ट आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, तो ये आंसर बिट ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे, द मिनिस्टर डिपार्टमेंट कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसल्टेंट्स सो दैट द आउटपुट ऑफ द कंसल्टेंसी इज इन लाइन विद द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का काम है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे कि वेदर द टास्क इज कैरिड आउट इन टाइम और नॉट, टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स था कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का, उसी ऑब्जेक्टिव से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, जो पर्टिकुलर कंसल्टेंट वो उसी ऑब्जेक्टिव में काम कर रहा है कि नहीं, ये सब देखेंगे। ये तो ट्रू है, ओके, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। 19 आंसर इज बिट ए। चलो 20 को चलेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज आर नॉट स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज प्रोक्योरमेंट। जब कंसल्टेंसी सर्विस दिया जाता है उसको बाइफर्केटेड नहीं किया जाएगा, उसको स्प्लिट अप नहीं किया जाएगा, ओके। बेसिकली रिक्वायर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज आर नॉट स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज प्रोक्योरमेंट्स, ये एब्सोल्युटली राइट है, आंसर इज बिट ए। ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये पूरा कंसल्टेंसी सर्विस के ऊपर था। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सीरीज 10 में, उसमें आप देख लीजिए, वो नॉन कंसल्टिंग सर्विस और आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर आएगा, सेकंड पार्ट, ठीक है। प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स my telegram channel link is there. Please click on it and join the telegram group, okay, so you can get all the videos. So कहाँ पर कोई ऐसा रॉन्ग अपडेटेड करते हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो ओनली फॉर यू जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियो, so that definitely if you go through the video properly, success rate would be 100% one. So thank you and namaskar.